जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। So, Dr. Ranganathan, let me bring you in. This is a big development. This is a big development that we're hearing from the Supreme Court. Where do you stand on this? Because fundamentally, I have nothing against the poor Rohingyas. You know, I'm sure they're quite destitute. They're in a bad situation. We must all collectively empathize with them, and we all do. But the point is, you make it comfortable for them. There are others looking over the border saying, hey, everyone gets a nice little deal here. Let's go to India. Let's all land up. No, of course. But I think, Rahul, good evening to you and to my fellow panelists. I think, seriously, the time has come for us to be honest about the way the Indian state conducts itself. I think the time has come for the government to take away our citizenship. Honestly, I think that will be the right thing to do. As it is, we are being constitutionally, legally, socially, educationally discriminated against. So why keep up with this pretense that we are equal citizens of this country? We can't approach the courts to reclaim our temples. Our temples are under government control. We are refugees in our own land. Our schools are forced to provide reservations. Our murderers are being felicitated and celebrated. Our festivals and ways of life is being regulated and adjudicated upon. So why this pretense? गर्व से कहो हम तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, कहो ना. And as far as Rohingyas are concerned, look, I have no objection to legal refugees being provided basic facilities for a limited period. There are Afghan refugees, there are so many refugees from other countries as well. But now it has come to providing those facilities to even illegal Rohingyas. And this in a country where most Indian children are deprived of those very facilities, where there is a teacher shortfall of 19%, 1.1 million teacher vacancy, where 40% of rural schools do not have a functional toilet, where the pupil to teacher ratio can go higher to 60:1, where 150 million Indian children are out of school. Our judges want to spend our precious resources on illegal Rohingyas, but not on Indians. They talk of discrimination and the Right to Education Act. Well, talking of discrimination and the RTE, this is a state that has forced only Hindu-run schools to provide reservation to 25% economically weaker section children. Thousands of Hindu-run schools are being shut down because of this, but our judges are silent. Returning to the Rohingya issues now, Rahul, number of Rohingya refugees currently living in the USA, 5,000. Europe, 3,000. Jordan, 1,300. Indonesia, 1,200. Canada, 1,100. Japan, 560. Qatar, 20. India, 40,000. Qatar, an Islamic Republic, has taken 20 Rohingyas. Jordan, Indonesia, other Muslim nations, 1,000 each. And India, 40,000. But hey, Muslim, anti-Muslim is Modi. India, a fascist Hindu Rashtra. And how many Bangladeshi Hindus have we let in over the last 6 months ever since the Hindu genocide in Bangladesh began? Zero. Remember how Indian Muslims united and indulged in Azad Maidan protests and riots to force the Indian government to take in Muslim Rohingya refugees from Myanmar? Well, it resulted in us ultimately taking in tens of thousands of Rohingya Muslim refugees. Is another matter that not one of them from the Indian Muslim community ever united to force the Indian government to settle 7 lakh Kashmiri Hindus who were driven out from their own homes. Anyhow, all Hindus remember Azad Maidan, but do we remember Khamong Sheikh, Rahul? We don't. It is a place in Myanmar where Muslim Rohingyas murdered more than 100 Hindus and their families mercilessly, raped, pillaged, even buried some alive. Many among those Rohingya Muslims who committed this atrocity might be right now in India as refugees. But as I said, no Hindu ever came out to talk about Khamong Sheikh. All we do is get jealous of Indian Muslims uniting for Rohingya Muslims, Palestinian Muslims, Lebanese Muslims. Rahul, if you are jealous of someone else's unity, it means you are divided. And I ask you finally 10 seconds. What kind of country is this where Kashmiri Hindus are forced to be refugees in their own land, where one can settle 40,000 Rohingya Muslims in India, 6,000 in Jammu and Kashmir, but not 7 lakh Kashmiri Hindus in Jammu and Kashmir, their land's original inhabitants? Every Indian refugee must be rehabilitated, Yes. and every illegal Rohingya refugee must be deported. Well, let me tell you, viewers, this is also the same Supreme Court that lectures the government for not doing enough to get rid of illegals, but then wants to also feather their nests. I don't understand what is going on, actually. I'm very confused. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें।
तो फिर ये वीडियो है CNN News 18 का डिबेट, जिसमें हमारे राहुल शिवशंकर एंकर कर रहे हैं, आनंद रंगनाथन जी बात कर रहे हैं इसमें, और ये बात हो रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रूलिंग दिया है, अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक आदेश दिया है कि जो ये घुसपैठियाँ रोहिंग्या कम्युनिटी है, ये हमारे कंट्री में आके हमारे जो सिटीजन्स की जो सहूलतें हैं, जो एक राइट्स हैं, उनको भी मिलना चाहिए। एजुकेशन के ऊपर है बच्चों का, उनके बच्चे जो इलीगली इंडिया में आके बैठ गए और ऐसे जगहों में बैठे हैं जहाँ सेंसिटिव जोन्स हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में बैठ गए हैं, वेस्ट बंगाल में बैठ गए हैं, आसाम में बैठ गए हैं, दिल्ली के अंदर बैठ गए हैं, हैदराबाद में बैठ गए हैं। हैदराबाद में तो हमारे ओवैसी जी हैं, उनके ब्रदर और ये बड़े वाले ओवैसी जी, इन लोगों ने बैठवा दिया उधर। और उधर तो राशन कार्ड भी दे दिया, वोटर ID कार्ड भी दे दिया है, आधार कार्ड भी दे दिया इन लोगों ने। और इससे भी जो दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में और भी बहुत सारी जगह में ऐसे ही दे के रखा है। तो फिर आप लोगों को तो पता होगा कि रोहिंग्या कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो म्यांमार से उनका उत्पीड़न हुआ था, उनको ऑप्रेस किया गया था। उधर के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने, ये बोला जाता है, क्योंकि इसका कॉन्ट्ररी ओपिनियन भी है कि इन लोगों ने ही उधर के जो माइनॉरिटी हिंदू हैं उनको मैसेकर किया था। उसके बाद एक बहुत बड़ा माइनॉरिटी हिंदू और जो उधर के मेजॉरिटी बुद्धिस्ट हैं उनको इन लोगों ने उंगली किया था। इसलिए उंगली करने के कारण ही उन लोगों का एक बहुत रैथफुल, बहुत गुस्सैला, एक बहुत ही उग्र रूप दिखाई दिया म्यांमार में। और उधर वैसे भी आप लोगों को पता है मिलिट्री रूल्स, तो फिर मिलिट्री रूल करता है तो फिर ऐसे कोई एथनिक ग्रुप अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसिस्ट तरीके से कोशिश करता है लागू करने की, और अपना माइनॉरिटी होने के बाद भी अपने रिलीजियस आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा ही ऊपर लेके रखता है। तो फिर एक बहुत बड़ा बैकलैश आता है उधर से, और म्यांमार में भी ऐसे ही हुआ था। तो फिर बहुत सारे लोग म्यांमार से निकले और बहुत सारे लोग बांग्लादेश में बसे हैं। अभी उधर एक बाज़ार है, कुक्स बाज़ार, उस बाज़ार में भी इन लोगों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा पर बैठा हुआ है, और उस जमावड़ा का उधर भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो उधर भी अशांति फैला रहे हैं। जब हसीना गवर्नमेंट उधर हुआ करती थी तो फिर हसीना जी ने भी बोला था कि हम इन ऐसे लोगों को अपने साथ रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हमको इंडिया को मिला के और भी बहुत सारे देशों को मिला के बोल रही थी वो कि मीडिएट करिए और म्यांमार गवर्नमेंट को बोलिए कि इन लोगों को लेके जाइए वापस। और इंडिया भी कोशिश करने की कोशिश किया था, बहुत टाइम कोशिश किया था कि इन लोगों को उधर ही भेज दें, पर वो नहीं हो पा रहा था। और इंडियन गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा चूक है इसमें, क्योंकि आप लोगों को जैसे देखा होगा USA में हमारे जो ट्रंप साहब हैं, वो कैसे इलीगल इमिग्रेंट्स को जो साउथ अमेरिका से आए हैं, लैटिन अमेरिका से आए हैं, वो सब लोगों को हंडुरास, चिली और भी बहुत सारे जो देश हैं उधर, ब्राज़ील, ऐसे देशों से, दूर दराज से, मेक्सिको से आके US के अंदर बस रहे हैं और वो बैठे हुए हैं उधर। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम राजा गवर्नमेंट आएगा, जब जो बाइडेन को हम उखाड़ के फेंक देंगे तो फिर सबसे पहले इन लोगों को भगाएंगे, इधर से डिपोर्ट कराएंगे। तो फिर आप लोगों ने देखा ही होगा USA के जो प्रेसिडेंट जी हैं उन्होंने क्या किया था। सबसे पहले आते ही बहुत सारे देशों में ऐसे ही लोगों को भेजा और अपने मिलिट्री प्लेन में बिठा के हैंडकफ लगा के, बेड़ी लगा के, जैसे इंडियन 200 लोगों को भी इधर भेज दिया था। इंडिया के बहुत सारे और भी लोग हैं उधर, उन लोगों को भी धीरे धीरे करके भेजेगा इंडिया के अंदर। और वो भी इलीगल तरीके से जा रहे हैं। तो फिर इलीगल तरीके से आप कभी भी कहीं भी नहीं जा सकते दुमकी उमकी करके। तो फिर ऐसे नहीं जाना चाहिए, आपको इंडिया में रहना चाहिए। आपको जाना ही है तो फिर लीगल तरीके से जाइए आप उधर, अगर वो आपको घुसने देते हैं अंदर। अदरवाइज़ आप इधर ही बैठ के अपना काम करना है काम करिए, कोशिश इधर करिए कि अपना गुजर बसेरा कर सकें। क्योंकि आप लोगों को जैसे पता होगा कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री। तो फिर उसको प्रॉस्पेरिटी के लिए
आप भी श्रम करिए तो फिर देश का और भी आगे बढ़ेगा। वो तो एक डिफरेंट बात कर रहे हैं इस टाइम। हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारे जो सिस्टम है, वो कैसे इलीगल्स को एक पेडेस्टल में बैठा के रख देता है, और हमारे जो एक ये एक्टिविस्ट लॉयर्स हैं, लीगल टीम्स हैं इनके, कॉलिन गॉन्जालेस, ऐसे ही बहुत सारे लॉयर्स हैं, ये लोग जाके बस बोल देते हैं और सुप्रीम कोर्ट को कि इन लोगों को एजुकेशनल राइट होना चाहिए, इनको ये राइट होना चाहिए, उनको ये राइट होना चाहिए। हमारे देश के अंदर ही बहुत सारे जो बच्चे हैं और बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को खाना भी ठीक तरह नहीं मिलता है, एजुकेशन भी ठीक तरह नहीं मिलता है। तो फिर पर हमको जो एक एथनिक कम्युनिटी, एक जो रिलीजियस कम्युनिटी, ये कम्युनिटी इलीगल तरीके से हमारे देश के अंदर आ गया, और इलीगल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ मिल रहा है, इनको घर भी मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, और पॉलिटिकल प्रेशर भी मिल रहा है। पर इन लोगों को हम सब कुछ दे देंगे लीगल तरीके से, सुप्रीम कोर्ट में जाके लॉयर्स इन लोगों के लिए लड़ेंगे, पर हम और हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो इन लोगों को बस उखाड़ के बाहर निकालो इनको। आप जैसे यूएसए ने किया था, वैसे ही आप भी प्लेन में बैठाओ इन लोगों को और म्यांमार में जाके छोड़ो, बोलो कि आप लोग इन लोगों का खातिरदारी करिए। हम क्यों करें, हम क्यों उठाएं इन लोगों का बर्डन अपने सिर में, क्योंकि ये कम्युनिटीज़ कभी भी इंडिया के अंदर इंटीग्रेट होने वाले नहीं हैं। ये अपना कट्टरपंथी सोच, एक रेडिकल सोच लेके रखेंगे और इंडिया को और भी पोलराइज कराएंगे, और भी हिंदू मुस्लिम होगा। ये जो हमारे जो ये लेफ्टिस्ट लोग हैं, ये बोलते रहते हैं ना हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं आप इंडिया वाले, क्योंकि ये ऐसा इश्यूज़ को ये लेफ्टिस्ट लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने लड़ते हैं, और इन लोगों को बेफजूल ही और भी हेटरेट फैलाते हैं इन लोगों के अगेंस्ट। इन लोगों को अभी भी हमारा गवर्नमेंट को यही करना चाहिए, इन लोगों को बस निकाल के इनके जो देश से इधर आए हैं उधर ही दे देना चाहिए। वो लोग, उनको प्रेशराइज़ करना चाहिए कि वो इन लोगों का ध्यान रखें, इन लोगों को एक अच्छा सा एरिया दे दे, स्कैटर करके रखे, ऐसे कुछ करके रखे। अगर उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मारिए वारिए मत, ये भी इंसान है, आप अपने देश में इंसानों की तरह इन लोगों को रखिए, क्योंकि आपके देश के वासी थे, जैसे म्यांमार के देश के वासी थे, तो म्यांमार में ही रहे। इंडिया में आके क्यों आप लोगों को हमारा थाली में खाना है? इधर वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी थाली में आप खाने का आपको कोई राइट नहीं है, उनकी थाली में छेद क्यों कर रहे हैं आप लोग? हमारा एक दायित्व था, हिंदू जो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से बाहर निकले थे, और श्रीलंका के हिंदुओं का और तमिल लोगों का दायित्व था हमारे लिए, और कोई दायित्व हमारे लिए नहीं है। ये जो रोहिंग्या लोग हैं, ये हमारा दायित्व नहीं है। ये अपने देश में वापस जाइए, और अपना, इन लोगों ने भी गलती की थी तो फिर उसके लिए भी आप भुगतान करिए, क्योंकि हमारा देश एक धर्मशाला नहीं है। ये देश पहले से ही ओवर पॉपुलेटेड है, और वो पॉपुलेशन धीरे धीरे उग्र भी होगा। इन लोगों को जॉब वॉब नहीं मिलेगा, इन लोगों को खाना पानी नहीं मिलेगा, इन लोगों के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगा। जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे सिटीजन्स नहीं है, पर तब भी हमारे देश में बैठा के रखा है एक पॉलिटिकल क्लास ने, और हमारे देश के जो पॉलिटिकल क्लास है उसको बाहर भी नहीं फेंकना चाहते, और हमारे जो जुडिशरी है वो उन लोगों को प्रश्रय देके इन लोगों को एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड लगा के बोलना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत लिबरल हैं। ये दिखाना चाहते हैं आप लोग, ऐसे मत दिखाइए, कि ये देश सहेगा नहीं अब इतना, बहुत ज़्यादा हो गया है ये जो क्या बोलते हैं इसे, कि ऑल इंक्लूसिव, ऑल दिस ऑल दैट, ये सब नहीं चलेगा, ये सब बहुत हो गया है। अभी इन लोगों को बस भेज देना चाहिए म्यांमार में, और बांग्लादेशियों को भी जो घुसपैठियाँ इधर बैठे हुए हैं, वैसे भी हमारे विरुद्ध वाला गवर्नमेंट है वो यूनिस का गवर्नमेंट, तो फिर उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने के लिए इन लोगों को फेंक देना चाहिए उधर वापस, और हमारे देश का भी भलाई होगा उससे। और मैं तो यही बोलूँगा, सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए, अपने देश के जो केसेस हैं, जो ओवरलोड केसेस पड़े हुए हैं, उन केसों में ध्यान रखिए आप। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ, इन लोगों को आप, और ये जो रोहिंग्या घुसपैठियाँ, इन लोगों को आप लोगों को ज़्यादा अर्जेंटली केसेस सुनना है इन लोगों का, क्यों? तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।